Good afternoon to everyone. We, Swarnim Gujarat Sports University, welcome all of you in this faculty development program jointly organized by Swarnim Gujarat Sports University and Gujarat Technological University, Ahmedabad, for the physical education and sports officer. In this session, I would like to welcome our today's expert, Dr. Abhishek Thakur sir. Sir is MPT in sports, physiotherapist. Sir has a vast experience in physiotherapist, working with physiotherapist in different associations. Right now, sir is working with Saurashtra Cricket Association. Sir is also working with Gujarat Cricket Association. He has vast experience of working with team, Ranji team, trophy team since 13 years. Sir has worked as physio with many cricket champions. Sir's specialization is musculoskeletal screening and prevention of injury by individual players program. Sir is specialized in on and off field injury treatment and management, rehabilitation of sports players to full return to sports, prevention of recurrent injuries, players workload management while training and skills, emphasis on recovery part to prevent injuries as well as to get maximum outcome in performance, to make players fitness program including strength and conditioning, to educate players for medicine and supplement intake as per the WADA protocol. So once again I would like to welcome Dr. Abhishek Thakur sir. Sir, the session is over to you. Thank you very much, sir. Thank you so much, Yajwendra ji. First of all, I would like to thank Dr. Arjun sir ने फिर से मुझे opportunity दी है यहाँ पर. 2 महीने पहले भी मैं 4-5 टॉपिक के ऊपर बात की थी, तो आज भी मैं 2 टॉपिक लेने जा रहा हूँ which is very useful in sports. So first we'll start with injury mitigation, that is injury prevention. So we'll share the screen. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. It is clearly visible. Yeah. So first topic is injury mitigation by risk factor assessment. So mitigation क्या होता है? So basically, what we talk all the time is injury prevention. See, injury 100% prevent करना किसी के भी हाथ में नहीं, and that is not possible as well. अगर कोई ग्राउंड सरफेस अनइवन है तो एंकल ट्विस्ट हो गया तो कोई भी फिजियो, कोई भी कोच या ट्रेनर इंजरी प्रिवेंट नहीं कर सकता है. कोई ओवरलोडिंग हो गया, किसी ने ट्रेनिंग बहुत सारी कर ली, ओवरलोड हो गए तो भी इंजरी आ सकती है, या कॉलिजन हो गया, 2 प्लेयर्स एक दूसरे आपस में कोलाइड हो गए तो भी इंजरी आ सकती है. सो वी कैन नॉट prevent injury 100%. That's why we are using term as injury mitigation. Mitigation means minimization. तो अभी रिसेंटली रिसर्च जो भी होता है, जो भी डेवलपमेंट होता है वो इंजरी मिनिमाइजेशन के ऊपर होता है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि जैसे हम इस बार चैंपियन हुए, सौराष्ट्र की टीम रणजी ट्रॉफी चैंपियन हुई, सो दैट इज बिकॉज ऑफ इंजरी मिनिमाइजेशन. हमारी पूरी सीजन में सिर्फ 1 या 2 प्लेयर ही इंजर्ड हुए और वो भी थोड़े टाइम के लिए ही. सो हुआ ये कि पूरा सीजन के लिए हमको जो भी हमारा जो कोर स्ट्रेंथ है, जो कोर ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है, वो हमको पूरा सीजन मिले. तो इम्पोर्टेंट मैच में पूरी टीम अवेलेबल थी. तो इस वजह से क्या होता है कि जो भी इम्पोर्टेंट मैचेस है वो आप जीतते जाते हो और आपको 100% फिट प्लेयर्स मिलते हैं, एंड दैट इज वाइस वर्सा गुड फॉर प्लेयर्स एज वेल, क्योंकि उनको भी हर एक मैच खेलने को मिलता है. उनकी जो भी मैच फीस होती है, उनका कैरियर है, वो भी हर एक मैच उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है. तो इंजरी मिनिमाइजेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ अस बीइंग सपोर्ट स्टाफ. जो भी हम कोच के लिए भी इम्पोर्टेंट है, फिजियो के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ट्रेनर्स के लिए भी, और ऑल द सपोर्ट स्टाफ के लिए भी हम इंजरी मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है.
तो देखते हैं हम अब कौन-कौन से रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व है कि जो इंजरी के लिए ज़िम्मेदार है। तो जो रिस्क फैक्टर का हम असेसमेंट करेंगे और उनको कैसे हम रिस्क फैक्टर को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ताकि इंजरी हम कम से कम कर सकें। सो 2 पार्ट में डिवाइड किया है मैंने रिस्क फैक्टर्स को। फर्स्ट इज़ इंट्रिंसिक रिस्क रिस्क फैक्टर एंड द सेकंड इज़ एक्सट्रिंसिक रिस्क फैक्टर। उसमें एक्सट्रिंसिक में वन इज़ मॉडिफाइबल and another is non-modifiable. So let's see with intrinsic risk factors. तो उसमें हम देख सकते हैं वर्कलोड है वो इंट्रिंसिक है, एमएस के फैक्टर दैट इज मस्कुलोस्केलेटल स्क्रीनिंग है, मसल इम्बैलेंस में वन बाय वन फिर डिटेल में जाऊंगा। फोर्थ इज मिनिमाइज रीअकरेंस, फिफ्थ इज स्लीप फटीग एंड रिकवरी, नेक्स्ट वन इज न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, देन बायोमार्कर्स एंड देन मेडिकल इश्यूज। तो ये सब है वो अंडर इंट्रिंसिक रिस्क रिस्क फैक्टर में आते हैं। तो फर्स्ट इज वर्कलोड। अभी वर्कलोड क्या है? ओवरलोड कैन कॉज ओवर यूज इंजरीज लाइक, जो भी ओवरलोड मतलब हमारी कैपेसिटी से बाहर हो जाता है लोड, या तो सडन हाइक इन द ट्रेनिंग कि आज हमने मतलब पहले हफ्ते में हमने ट्रेनिंग की तो हमने लेट्स सी के हम रोज 400 मीटर्स का हमने जॉग किया, फिर सेकेंड वीक में हम ऑल ऑफ अ सडन 1 किलोमीटर का जॉग करने लगेंगे तो दैट इज ओवरलोड। ठीक है, वैसे ही स्ट्रेंथ अगर सेशन करते हैं तो हमने पूरा वीक अगर 40-50 केजीज से हमने ट्रेनिंग की, मतलब शोल्डर के लिए अगर 40-50 केजीज का लोड लोड से हमने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, और नेक्स्ट वीक में हम ऑल ऑफ अ सडन उसमें 90-100 केजीज का वेट से हम स्ट्रेंथ करते हैं तो दैट इज ओवरलोड। तो ओवरलोड से बेसिकली क्या होता है? स्ट्रेस रिएक्शन। तो मैं ये भी थोड़ा डिटेल में जाऊंगा कि व्हाट इज स्ट्रेस रिएक्शन। स्ट्रेस रिएक्शन एज एन एग्जांपल अगर मैं दूं तो हम लोग हार्ड सरफेस पर या तो रोड पे रनिंग करते तो बहुत सारों की कंप्लेन होगी प्लेयर्स की कि हमको शिन पेन हो रहा है। ठीक है, सो दैट इज अ साइन फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेस रिएक्शन। तो उसमें अगर हम कुछ भी ना करें, उसको एसेस ना करें ठीक से, और हम प्लेयर्स को बोले कि नहीं कुछ भी नहीं है, तुम भागते रहो, या तो सिर्फ आइसिंग करेंगे या तो कुछ प्रोटेक्शन दे देंगे, क्रैप बैंडेज वगैरह हम बांध के हम उसको बोलेंगे नहीं तू भागता रहे, देयर इज नथिंग टू वरी, तो इट विल कन्वर्ट इन स्ट्रेस रिएक्शन। ठीक है, द सेकंड वन इज स्ट्रेस फ्रैक्चर। तो स्ट्रेस रिएक्शन में भी हम कुछ नहीं करेंगे, पेनफुल कंडीशन में भी वी मेक हिम टू प्ले प्लेयर को, तो इट विल अल्टीमेटली बिकम स्ट्रेस फ्रैक्चर। तो उसका जो रिकवरी है वो पार्ट बहुत लंबा चला जाएगा, मतलब प्लेयर्स को 4-5 महीने तक उसका रिहेबिलिटेशन और ट्रीटमेंट चलते रहेंगे डिपेंडिंग अपॉन द इंजरी। द नेक्स्ट वन इज मसल स्ट्रेन और टेयर्स। आपको पता है जो मसल पूल हो जाते हैं या टेयर हो जाते हैं, जो स्ट्रेन होता है। वर्कलोड, ओवर वर्कलोड से फटीग लगता है, मतलब हमको थकान महसूस होती है, पूरा दिन हम रिकवर नहीं होते, ऐसा ही महसूस होता है, सो दैट इज फटीग। मसल स्पाज्म, सडन मसल्स क्रैम्प में चले जाते हैं या टाइटनेस हो जाती है मसल्स में, तो वो भी ओवर यूज की वजह से होता है। डिलेड रिकवरी, तो रिकवरी हमको 4-5-6 घंटे में आनी चाहिए, उसमें 24 आवर्स या 48 आवर्स लगते हैं रिकवर होने में, तो वो भी दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ ओवर वर्कलोड। एंड द अल्टीमेटली इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस, तो डेफिनेटली अगर आप रिकवर नहीं होंगे ठीक से, आपको थकान महसूस होगी, आपके मसल्स फ्लेक्सिबल नहीं रहेंगे, टाइटनेस लगेगी मसल्स में, तो आप आपका 100% नहीं दे पाओगे, तो अल्टीमेटली इट विल इफेक्ट ऑन योर परफॉर्मेंस। So these all things happens due to overuse, or we can say over workload. तो लेट्स सी हम वर्कलोड को कैसे कम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वन इज वर्कलोड मैनेजमेंट। हम कैसे कम कर सकते हैं? अभी मैंने क्रिकेट का एग्जांपल इसमें दिया है। हम लोग ये करते हैं, एक लॉग बुक मेंटेन करते हैं जो कि हर एक सपोर्ट स्टाफ को मेंटेन करनी चाहिए, इन्वॉल्व बीइंग इन्वॉल्व विद द स्पोर्ट्स। तो ट्रेनर है उनकी एक अलग लॉग बुक होनी चाहिए, फिजियो है उनकी अलग लॉग बुक होनी चाहिए, कोच है उनकी अलग लॉग बुक होनी चाहिए। तो हम वो लॉग बुक में चाहे डिजिटल मतलब कंप्यूटर में अगर डेटा फिट करो या तो हैंड रिटन रखो, तो कुछ भी आप पर एक डेटा कलेक्शन रखो कि आज ये प्लेयर ने कितना वर्क किया है इंडिविजुअल। तो हम लोग करते हैं बॉलर्स का बॉलिंग लोड, कि प्रैक्टिस में ये प्लेयर कितना बॉलिंग डालता है, फिर मैच में टोटल उनका बॉलिंग, क्योंकि हम वहां पर जाके कैप्टन को नहीं बोल सकते कि भाई तू कम ओवर दे या ज्यादा ओवर दे, डिपेंडिंग ऑन देयर परफॉर्मेंस। अगर टेस्ट मैच है, कोई प्लेयर विकेट्स लेता है अच्छी, तो उनको कैप्टन डलवाते रखता है। पर हमको फिर लोड मैनेजमेंट कैसे करना है कि इन बिटवीन 5 दिन का टेस्ट मैच है और 3-4 दिन ब्रेक आता है, तो 3-4 दिन में
हम कोच के साथ बात करते हैं कि ये प्लेयर ने बहुत ज्यादा बॉलिंग डाल दी है, तो वो नेट प्रैक्टिस के टाइम पर बॉलिंग नहीं करेगा, राइट। तो वो हम अगर मेंटेन करेंगे डेटा तो हमको एग्जैक्ट आइडिया आएगा कि एक हफ्ते में कितने बॉल्स डालता है या एक महीने में कितने बॉल्स डालता है। सो दैट इज वन थिंग। सेकंड इज बैटिंग, फील्डिंग एंड ट्रेनिंग लोड्स। तो हम ये भी डेटा रखते हैं कि बैटिंग में वो कितना बैटिंग करता है, 45 मिनट्स 50 मिनट्स बैटिंग करता है, फील्डिंग कितनी चलती है डेली, 45 मिनट्स या 30 मिनट्स कितनी फील्डिंग चलती है, या ट्रेनिंग क्या क्या करता है, कि साइड में हम प्लेयर्स को जो ग्राउंड ट्रेनिंग करवाते हैं, कंडीशनिंग करवाते हैं या जिम ट्रेनिंग करते हैं, वो कितनी करता है, वो भी हम डेटा रखते हैं। उसमें हम डेटा में देखते हैं कि आरपीई स्केल में कितने काउंट है, वो हम बाद में देखेंगे व्हाट इज आरपीई स्केल, ठीक है, उसके भी डेटा रखते हैं। एंड द थर्ड वन इज एक्यूट क्रॉनिक वर्कलोड रेशियो, वो भी देखेंगे व्हाट इज एक्यूट क्रॉनिक वर्कलोड रेशियो। Okay, so this is an example, this is quite confidential, still I want to show to you कि ये हमारे जो प्लेयर्स है रणजी के, तो इस सीजन में उन लोगों ने मैच वाइज कितनी बॉलिंग की। So the highest was 399 by धर्मेंद्र जडेजा, but he is a spinner, so that is like फास्ट बॉलर अगर इतनी बॉलिंग डालता है तो दैट इज टू मच, पर अगर स्पिनर डालता है तो दैट इज एवरेज, राइट। तो 400 ओवर्स उसने डाली। सेकंड इज जयदेव उनडकट, एंड देन दूसरे ऑलराउंडर्स है, या तो कोई बॉलर्स ऐसे है कि 2-3 मैच बीच में नहीं खेले तो उनका थोड़ा 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 कम। सो टोटल ओवर बोल्ड ड्यूरिंग द सीजन ये इतनी बोल, तो हमको प्लान पता चलता है कि सीजन के बाद उनको कितनी रिकवरी चाहिए, या ड्यूरिंग सीजन भी मुझे पता चलता है कि जैसे उनडकट ने दूसरी मैच में 34 ओवर्स डाली है, तो स्ट्रेट अवे मैं कोच को बोलूंगा कि नेट प्रैक्टिस में वो बॉलिंग नहीं डालेगा, तो तभी हम रोटेशन में दूसरे बॉलर्स का यूज करते हैं। वैसे ही धर्मेंद्र जडेजा ने फोर्थ मैच में 64 ओवर डाली है, तो फोर्थ और फिफ्थ मैच के बीच में जो टाइम मिलता है उसमें हम उसको कंप्लीट रेस्ट और रिकवरी देते हैं, ताकि वो फिफ्थ मैच में अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। सो दिस इज हाउ आई कैन मेंटेन एंड आई कैन सी रिकवरी पार्ट एंड आई कैन सी द वर्कलोड एज वेल। तो इससे हम मैनेज कर सकते हैं इजीली। फिर सेकंड मैंने बोला था जैसे रेट ऑफ परसीव एक्सर्शन, उससे हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो हम प्लेयर्स को पूछते हैं, हर एक प्लेयर की कैपेसिटी अलग अलग रहती है, उन्होंने ऑफ सीजन में या प्री सीजन में कैसे वर्कआउट किया है, कैसे प्रिपेयर किया है खुद को फिजिकली, उसके हिसाब से उनको आरपीई का पता चलता है। तो हम उनको पूछते हैं कि उनको सेशन कैसा लगा। तो इफ आई फाइंड के कोई प्लेयर है उनको हर एक सेशन वो 7 रैंकिंग देता है, तो दैट इज वेरी हार्ड सेशन फॉर हिम, तो उसका थोड़ा वर्कलोड हम कम कर देते हैं, तो कि उसको सेशन इतना हार्ड लगे नहीं, तो वो दूसरे सेशन में ज्यादा अच्छी तरीके से रिकवर हो सके। तो दैट इज आरपी स्केल, और वो डिपेंड करता है आपकी हर एक प्लेयर की इंडिविजुअल फिटनेस कैसी है, उसके ऊपर से आरपी स्केल डिपेंड करता है। द नेक्स्ट वन इज एक्यूट क्रॉनिक वर्कलोड रेशियो। तो जैसे मैंने बोला था कि हम लोग ये एक्यूट वर्कलोड मतलब वी कलेक्ट द डेटा ऑफ अ वीक, ठीक है। एक वीक में हम कलेक्ट करते हैं आरपी काउंट्स। अगर आज का सेशन है पूरा, तो मंडे सेशन है तो उसमें उसको 7 आरपी हुआ, देन ट्यूसडे उसका आरपी है 5, देन 6, तो टोटल अगर एवरेज मैंने एग्जांपल दिया एक्यूट में 6 आरपी है, मतलब डेली उसको 6 आरपी उसको लगता है कि मुझे इतनी थकान लगी है। और सेशन कितना रहता है, तो ऑन एन एवरेज अगर 60 मिनट्स का सेशन मान लो, तो हम उसको टोटल मल्टीप्लाई करके टोटल होता है उसका 360, दैट इज हिज वर्कलोड, एक्यूट वर्कलोड, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि 4 वीक्स के बाद में उसका टोटल, तो देखो तो अगर वर्कलोड 360 फर्स्ट वीक में आया, दूसरे वीक में 400 आया, तीसरे वीक में भी 400 आता है, चौथे वीक में फिर से अराउंड 440 आता है, तो टोटल हम काउंट करते हैं तो उसका वर्कलोड हो गया 1400। 1400 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो इट इज ऑलमोस्ट अराउंड 350 समथिंग। ओके, तो अगर हम फिर एक्यूट को लाइक ये 360 आया है उसको हम 350 से डिवाइड करते हैं, so that is like 1.1, ठीक है। तो स्वीट स्पॉट इज वेरी गुड, लाइक यू आर गोइंग टू अ परफेक्ट पाथ। एक्यूट रेशियो डिवाइडेड बाय क्रॉनिक वर्कलोड, ओके, इट शुड कम विद इन 0.80 टू 130। तो उसका मतलब ये हुआ कि हमेशा वीकली जो ट्रेनिंग आप देते हो, तो वो आप अराउंड 10% बढ़ाओ या कम करो, उससे ज्यादा मत करो, ठीक है। वो हिसाब से अगर जाओगे तो आपको इंजरी ज्यादा नहीं मिलेगी, ठीक है। आप प्लेयर्स को सेव कर सकोगे, उनका रिकवरी भी अच्छा होगा और ट्रेनिंग पार्टिसिपेशन भी अच्छा होगा, परफॉर्मेंस में भी वो
अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये है एक्यूट क्रॉनिक वर्कलोड रेशियो। So this is how from these three things we can manage a player's workload. The second is MSK factor. Like being physio, what we do, हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा प्री सीजन कैंप रहता है या तो ऑफ सीजन कैंप रहता है, तो हम हर एक प्लेयर का MSK स्क्रीनिंग, मस्कुलोस्केलेटल स्क्रीनिंग करते हैं, जो हमको तकरीबन 50 मिनट्स पर प्लेयर हम टाइम लेते हैं उस पर। तो हम उसमें क्या करते हैं कि हर एक प्लेयर का पूरा असेसमेंट बॉडी पार्ट्स का लेते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ कम है, किस मसल्स की, कोई कौन से जॉइंट की रेंज कम है, कौन सा मसल टाइट है, या तो कोई अंडरलाइंग पैथोलॉजी नहीं है ना, या तो पहले जो भी उसको इंजरी हुई थी वो फिर से कोई चांस नहीं है ना उसको रिकरेंट होने का। वो सब हम एसेस करते हैं और उसके हिसाब से हम उनका प्रीहैब प्रोग्राम बनाते हैं कि हमको फाइंडिंग्स लगे कि काफ मसल टाइट है, ग्लूट्स जॉइंट की रेंज ठीक नहीं है, या तो उसको एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है, या पोस्चरल काइफोटिक कर्व है, या राउंडेड शोल्डर है, वो सब हम डेटा लेते हैं और उसके हिसाब से हम एक उनका प्रीहेप प्रोग्राम बनाते हैं जो पूरी सीजन उनको फॉलो करना है। वो प्रीहेप प्रोग्राम इज सीरीज ऑफ एक्सरसाइजेस, 30-40 मिनट तक उनको वो एक्सरसाइजेज डेली करनी है, ताकि हम जो भी जो डेफिसिट्स है, जो भी हमको फाइंडिंग्स मिले हैं, उनको हम करेक्ट कर सकें। सो दैट इज वन थिंग। तो प्री सीजन स्क्रीनिंग, कलेक्शन ऑफ फाइंडिंग्स इंक्लूडिंग जॉइंट रेंज ऑफ मसल, जैसे मैंने बोला, मसल टाइटनेस, मसल वीकनेस, अंडरलाइंग पैथोलॉजीज, जॉइंट मोबिलिटी, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, ये सब चीजें। प्री प्रोग्राम टू मिनिमाइज इंजरी एंड करेक्शन ऑफ फाइंडिंग्स, तो हम ये MS स्क्रीनिंग करते हैं। द नेक्स्ट वन इज मसल इम्बैलेंस। वो हम देखते हैं मैनुअल मसल टेस्टिंग से। अगर आपके पास हैंड हेल्ड डायनामोमीटर है तो आपको परफेक्ट फाइंडिंग मिलेगी कि मैनुअल मसल टेस्टिंग में ये भी होता है कि जो भी प्रैक्टिशनर है, जो भी फिजियोस है, अगर आज कोई प्लेयर को मैंने एसेस किया तो मेरा फाइंडिंग दूसरे के फाइंडिंग से थोड़ा डिफरेंट आएगा। सो दैट इज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एरर। तो MMT से भी कर सकते हैं या डायनामोमीटर से कर सकते हैं। एंड द सेकंड इज रिटर्न टू प्ले। जो हम प्रीहेप करते हैं उसके बाद एक हमारे पास रहता है रिटर्न टू प्ले क्राइटेरिया, कि जब प्लेयर्स फिट होता है तब उनको उनका हम डेटा एसेस करते हैं, पूरा स्ट्रेंथ का, बैलेंस का, कोऑर्डिनेशन का। तो जब भी रिहैब के बाद, मतलब इन बिटवीन उसको अगर कुछ इंजरी हो जाती है, तो रिहैब के बाद वो प्लेयर हमारे पास आता है, या तो मिड सीजन में भी हम फिर से वो एसेस करते हैं, तो हमको पता चलता है कि भाई पहले तेरा ग्लूट्स था, वो प्री सीजन में, मतलब तुम्हारा स्ट्रेंथ इतना था, अभी मिड सीजन में ये कम हो गया है स्ट्रेंथ, तो तू इसके ऊपर वर्क कर। तो हमारे पास एक ऑथेंटिकेटेड डेटा रहता है। और पोस्ट इंजरी भी टेस्टिंग में हमको काम आता है कि रिहैब तब तक हम करेंगे जब तक जो डेटा है उसका, रिटर्न टू प्ले का, जो जो वो फिट था, वही डेटा सिमिलर मिलेगा पोस्ट इंजरी स्टेटस में, तो ही हम प्लेयर को बोल सकते हैं कि ही इज फिट टू प्ले। तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज है मसल इम्बैलेंस को देखना, क्योंकि बिकॉज ऑफ मसल इम्बैलेंस देयर आर चांसेस टू गेट इंजरी। द नेक्स्ट वन इज मिनिमाइजेशन ऑफ रीअकरेंस। बहुत बार हमने देखा है कि आज कुछ हैमस्ट्रिंग टेयर हो गया, प्लेयर गया ट्रीटमेंट और रिहैब में फिजियो ने बोला कि ही इज ओके टू प्ले, ही इज फिट टू प्ले, फिर से मैच खेला और फिर से उसका हैमस्ट्रिंग टेयर या स्ट्रेन हो गया। तो हमने बहुत बार देखा है रीअकरेंस होना। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बाय रेगुलर फॉलोअप्स ऑफ पास्ट इंजरी। आज किसी को बैक पेन है तो मैं एक एक महीने या डेढ़ डेढ़ महीने, जो भी मैंने टाइम डिसाइड किया है, तो उसके हिसाब से उसके बैक का रेगुलर एसेस करता रहूंगा। या हैमस्ट्रिंग है तो हैमस्ट्रिंग रेंज, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथ, सब में पीरियोडिकली मैं एसेस करता रहूंगा। बाय कंटिन्यूइंग रिहैब प्रोग्राम फोकस्ड ऑन पास्ट इंजरी। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया कि नाउ ही इज फिट टू प्ले और फिर मैं वो रीजन और या मसल, पर्टिकुलर मसल या सेगमेंट के ऊपर वर्क नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होगा। मैं पूरा सीजन वो उसके ऊपर ध्यान रखूंगा और उसका रिहैब प्रोग्राम तो मैं कंटिन्यू ही रखूंगा, क्योंकि उसको रीअकरेंस ना हो। By assessing other risk factors which may lead to reoccurrence like initial workloads, कि अगर किसी को शिन पेन था तो मैं थोड़ा इनिशियल वर्कलोड में उसको स्लोली स्लोली स्टार्ट कराऊंगा रिटर्न टू प्ले में। ऐसा नहीं कि पहले ही दिन मैं बोलूंगा कि तू 5 किलोमीटर भाग ले, ठीक है, मैं ग्रेजुअली उसके ऊपर जाऊंगा। जैसे किसी का थ्रोइंग शोल्डर है
तो अगर रिहैब कंप्लीट हो गया, ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गई, सब मैंने स्पेशल टेस्ट कर लिया, फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि भाई 10 मीटर्स के थ्रू 15 या 20 थ्रो कर, फिर 2 दिन के बाद मैं थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस और इंटेंसिटी बढ़ाते जाऊंगा। तो रिटर्न टू प्ले के सून आफ्टर यू नीड टू मैनेज हिज वर्कलोड, न्यूट्रिशन वाइल इंजरी या तो पोस्ट इंजरी, वो क्या न्यूट्रिशन लेता है, हाई प्रोटीन डाइट लेता है कि नहीं, या कार्ब्स लेता है कि नहीं। सो आई चेक ऑन दैट एज वेल। रिकवरी पार्ट देखूंगा कि कितना वो रिकवर होता है, वो पर्टिकुलर रीजन या सेगमेंट रिकवर होता है कि नहीं, वहां पर कोई स्पाज्म फिर से नहीं उसको लगता है ना, या टाइटनेस नहीं लगती, वो मैं चेक करूंगा। चेंजेस इन बायोमैकेनिकल चेंजेस इन बॉलिंग बैटिंग इफ नीडेड, जैसे मैंने क्रिकेट का एग्जांपल लिया, यू आल्सो कैन टेक समथिंग लाइक रनर्स है, पर उसकी जो रनिंग पैटर्न है वो ठीक नहीं है, और आपको ऐसा लगता है कि वो रनिंग पैटर्न की वजह से उसको इंजरी हुई है, ठीक है, तो वो आप ड्यूरिंग रिहेबिलिटेशन या पोस्ट रिहेबिलिटेशन आप उसके बायोमैकेनिकल चेंजेस करवा सकते हैं, ताकि वो फिर से इंजर्ड ना हो। सो दिस ऑल थिंग्स वी कैन डू फॉर टू मिनिमाइज reoccurrence of the particular injury. Now next one is sleep, fatigue and recovery. This is very important. This is very important. Sleep is very important क्योंकि अगर ठीक से प्लेयर्स स्लीप नहीं लेता है, मतलब नींद नहीं ठीक से लेता है, तो वो ठीक से रिकवर नहीं होगा, कोई भी प्लेयर हो। So there is poor sleep factors. अभी poor sleep लेने से क्या होगा? सॉरी, पुअर स्लीप के फैक्टर्स कौन कौन से, वाई, क्यों प्लेयर्स ठीक से नींद नहीं ले सकता है? दैट इज बिकॉज चेंजिंग ट्रैवल शेड्यूल्स, कि बहुत बार ऐसे आउटस्कर्ट्स या आउट स्टेशन में आपको जाना हो तो ओवरनाइट आपको जर्नी करनी पड़ती है, उसकी वजह से आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है। सेकंड, लेट नाइट मैचेस है, जैसे फुटबॉल लीग है, उसमें रात के मैच रहते हैं तो 11-12 बजे कंप्लीट होते हैं, फिर डिनर लिया वहाँ पर, ड्रेसिंग रूम में से निकलते निकलते 1-2 बज जाते हैं और प्लेयर 3 बजे सोने जाता है। सो दैट इज चेंजिंग इन द स्लीप। हाई कैफीन जो रेड बुल पीते हैं या तो कैफीन का टैबलेट लेते हैं, तो दैट इज ऑल्सो पुअर स्लीप फैक्टर। 4 घंटे के पहले कुछ भी कैफीन इनटेक लेते हो तो आपको अवेक रखता है। प्री मैच स्ट्रेस, कोई सोच में रहता है या बटरफ्लाई इन द स्टमक, कि कोई नया प्लेयर है, डेब्यूटेंट है, तो पूरी रात सो नहीं पाता है मैच का सोच के, तो प्री मैच स्ट्रेस कैसे लेता है प्लेयर, उसकी वजह से आपको स्लीप डिस्टरबेंस होता है। मसल सोरनेस, बहुत थकान जब होती है तो पेन की वजह से थोड़ा थोड़ा इरिटेशन रहता है मसल्स में, तो उसकी वजह से स्लीप डिस्टर्ब होती है। एंड द लास्ट वन, कांस्टेंट चेंज इन होटल्स। ठीक है, एक रूम आपको, मतलब एक जगह पर आप 10-15 दिन सेटल हुए, फिर दूसरे वेन्यू में जाना पड़ता है, वहाँ पर बेड डिफरेंट रहता है, एम्बियंस डिफरेंट रहता है, तो बहुत बार प्लेयर्स को ये भी लगता है, मतलब उनको होटल चेंज करने से ठीक से अ, अ, नींद नहीं आती है। तो दीज ऑल आर द फैक्टर्स की जिसकी वजह से स्लीप डिस्टर्ब होती है। अभी उसकी इफेक्ट क्या होती है? तो फर्स्ट इज कॉग्निटिव फंक्शन, कि जो आपका मेंटल स्टेटस है, जो आपकी सोच है, वो सब थोड़ा डिफर करता है। मेटाबॉलिक कंट्रोल ऑफ एनर्जी बैलेंस, जो एनर्जी इंट्रिंसिक एनर्जी बैलेंस रहता है बॉडी का, वो बिगड़ता है। एपेटाइट एंड वेट, आपका वेट और भूख लगना वो भी बढ़ जाता है या कम हो जाता है, तो देयर इज ऑल्सो डिस्टर्बेंस इन दैट। और टिश्यू रिपेयर, अगर आप, वो मेन इंपॉर्टेंट, आप ठीक से नींद नहीं लेते हो तो टिश्यू रिपेयर में भी डिले होता है, तो रिकवरी अल्टीमेटली आपकी डिले होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्लीप एंड रिकवरी। There is some disturbance. Okay. The next one we have a chart, उसको हम बोलते हैं एथलीट स्लीप बिहेवियर क्वेश्चन। कि अगर कोई प्लेयर मेरे पास आता है तो हम फाइंड आउट करते हैं कि क्या रीजन है कि वो ठीक से नींद नहीं ले पाता है। तो यहाँ पर मैंने एक चार्ट दिया है, तो मैं जूम करता हूँ। उसमें दिया है कि जैसे आफ्टरनून में आप सो जाते हो, दो बहुत बार ऐसा होता है कि आफ्टरनून में 2-3 घंटे सो जाते हैं, फिर रात को नींद नहीं आती है। फिर कैफीन लेते हो कि नहीं रात को सोने से पहले। फिर अब लेट नाइट ट्रेनिंग करते हो या अल्कोहल 4 घंटे के पहले लिया है कि नहीं लिया है।
डेली आप रात को डिफरेंट डिफरेंट टाइम में सोने जाते हो, एक ही टाइम में सो जाओ. सो देर आर मेनी क्वेश्चंस, यू कैन ऑल्सो गेट इट ऑनलाइन. तो ये आप रखो आपके पास, उसमें भी आप डेटा फिल कर सकते हो, तो आपको एग्जैक्ट रीजन मिलेगा कि उसका प्लेयर की स्लिप क्यों डिस्टर्ब होती है, तो उसके हिसाब से आप करेक्शन उसमें कर सकते हो या एडवाइस दे सकते हो. Okay. The next one is fatigue and recovery. तो फर्स्ट वन इज डॉम स्केल. हम देखेंगे डॉम स्केल क्या है. आरपी स्केल हमने देखा पहले कि अगर वेरी हार्ड ट्रेनिंग प्लेयर को लगता है कि बहुत हार्ड ट्रेनिंग है तो वो ठीक से रिकवर नहीं होगा, तो उसको हमको मैनेज करना पड़ेगा, उसका ट्रेनिंग लोड थोड़ा कम करना पड़ेगा. Reactive strength index, that is like you can check his vertical jump test on daily basis, या तो कोई टाइम फिक्स करो, एक हफ्ते में एक बार उसको वर्टिकल जंप करवा के देखो. अगर ठीक से रिकवर नहीं होगा तो इसके ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट होगा. एथलीट वेलनेस क्वेश्चनर, वेर एथलीट विल रेट हाउ दे फील. ये भी एक अलग क्वेश्चनर है, ये भी एक अलग फॉर्म है. उसमें प्लेयर्स वो कैसा फील करते हैं, उनका मूड कैसा है, वो बताएंगे आपको. उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि वो प्लेयर रिकवर हुआ है कि नहीं हुआ है. तो उसके हिसाब से हमको फटीग का पता चलेगा, प्लेयर कितनी थकान महसूस करता है. सो नेक्स्ट वन इज रिकवरी. रिकवरी में हम देखते हैं रेस्टिंग हार्ट रेट, कि सुबह उठ के ही डायरेक्टली प्लेयर खुद के हार्ट रेट चेक करता है और देखता है कि कितना हार्ट रेट है. तो अगर डेली मतलब एक महीने में हार्ट रेट, रेस्टिंग हार्ट रेट अगर कम होते हैं, मतलब ग्रेजुअली कम होता है, तो दैट इज़ वेरी गुड साइन कि प्लेयर एक्लीमेटाइज हो रहा है ट्रेनिंग को और प्रॉपर रिकवर भी हो रहा है. सेकंड इज यूरिन डिस्कलरेशन. हम प्लेयर को बोलते हैं कि आपका यूरिन कलर चेक करो. और अगर वाइट, एकदम वाइट आता है या स्लाइटली येलोइश होता है तो दैट इज फाइन, तो प्लेयर इज वेरी वेल हाइड्रेटेड. वो हम देखते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस. हम वी कीप ऑन आस्किंग प्लेयर्स कि सुबह उठते हो तो आपको कैसा महसूस होता है, आपको कोई स्ट्रेस लगता है कि नहीं, मैच के पहले स्ट्रेस लगता है कि नहीं, फिजिकली आप कैसा महसूस कर सकते हो. तो इन सब चीज़ों से हमको पता चलता है कि कैसे कैसे प्लेयर कितना थकान महसूस करता है या प्लेयर का कितना रिकवर हुआ है. So these all are very important factors. Now we'll see fatigue में डॉम स्केल क्या है. That is delayed onset of muscle soreness. हम लोगों ने सबने देखा होगा और महसूस किया होगा ये चीज़ कि हम महीने के बाद ट्रेनिंग करते हैं या जिम करते हैं तो हम लोगों को स्टिफनेस लगती है. जो भी पार्ट यूज होता है, अगर शोल्डर की एक्सरसाइज हम करते हैं तो वो 2 दिन के लिए स्टिफ हो जाते हैं. सो दैट इज कॉल्ड डॉम्स. ठीक है. हम लोग घबरा भी बहुत, जिसको पता नहीं होता है उनको कंफ्यूजन होती है कि ये क्यों हो गया, मतलब मैं इंजर्ड हो गया है, क्या हो गया. बहुत टाइम के बाद रनिंग करते हो तो आपके काफ मसल्स है वो स्टिफ हो जाते हैं, बट दैट इज नॉर्मल थिंग. ठीक है. तो डॉम स्केल में हम 0 to 6 उसकी वैल्यू देते हैं. तो जितना डोम्स कम होता है आफ्टर ट्रेनिंग या नेक्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग, उतना प्लेयर के लिए अच्छा है. मतलब उसका बॉडी है वो एक्लिमेटाइज हुआ है, या तो उसकी ट्रेनिंग ठीक से चल रही है, या कितना वो रिकवर हुआ है वो भी हमको पता चलेगा डोम स्केल से. द नेक्स्ट वन इज, मैंने जैसे बोला कि यूरिन डिस्कलरेशन. हम यूरिन का कलर प्लेयर्स को बोलते हैं कि वो चेक करें. तो फर्स्ट 1 and 3, जो पहले 3 नंबर है, ठीक है, वो कलर का अगर यूरिन है तो दैट इज प्लेयर इज हाइड्रेटेड नाइसली. 4 to 6 है तो दैट इज वाइट येलोइश. ठीक है, तो उसमें हम बोल सकते हैं कि वो डिहाइड्रेटेड है प्लेयर. एंड 7 to 8 इज सिवियरली डिहाइड्रेटेड. ठीक है, तो उनको बहुत पानी पीने की जरूरत है. सेकेंड थिंग, डोंट गेट कंफ्यूज्ड इफ यू आर टेकिंग मल्टीविटामिन. कोई मल्टीविटामिन टेबलेट लेता है तो उसका येलोइश ही रहेगा यूरिन कलर. तो आप एक बार ये भी देखना कि आप मल्टीविटामिन लेते नहीं हो ना, वरना आपको कंफ्यूजन होगी कि मैं डिहाइड्रेट हूँ कि नहीं. ठीक है. तो हर एक इंडिविजुअल या स्पोर्ट्स पर्सन का यूरिन कलर शुड बी बिटवीन 1 to 3. अगर ये कलर नहीं रहता है तो आपको बहुत ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है. द नेक्स्ट वन इज न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस. वो क्या पूरा दिन में डाइट लेता है, प्री मैच डाइट क्या है उसका, पोस्ट मैच डाइट क्या है, या ड्यूरिंग द मैच उनकी डाइट क्या रहती है, वो हम चेक करते हैं. फॉर एथलीट्स सजेस्टेड बाय न्यूट्रिशनिस्ट. ठीक है, एक न्यूट्रिशनिस्ट हम अपॉइंट करते हैं, या तो हर एक, सॉरी, या तो न्यूट्रिशनिस्ट सजेस्ट करते हैं.
वो हम डाइट प्रीफर करते हैं। अगर एक्यूट वेट लॉस होता है तो आपको दैट इज अलार्मिंग साइन, आपको चेक करवाने की ज़रूरत है कि ड्यू टू व्हाट इट इज़, बिकॉज ऑफ ओवर ट्रेनिंग या तो कोई न्यूट्रिशन में कमी रह गई उसकी, या तो कोई अंडरलाइंग पैथोलॉजी है, तो वो आपको चेक करवाने की ज़रूरत है। नाइट क्रैम्प्स और फ्रीक्वेंट एपिसोड्स ऑफ क्रैम्प व्हाइल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, अगर नाइट में किसी को क्रैम्प आने लगे, मसल्स सडन टाइटनेस में चले गए, या तो मैच के टाइम में भी क्रैम्प्स आते हैं बहुत बार, बहुत लोग होते हैं जिनको मैच के टाइम में बहुत बार क्रैम्प्स आते हैं, तो उनको चेक चेक करना चाहिए कि वेदर जो वो डाइट लेते हैं वो प्रॉपर है कि नहीं, या तो फिर वो हाइड्रेटेड प्रॉपरली होते हैं कि नहीं होते हैं। The next one is deficiencies of essential vitamins, minerals, blood, hemoglobin, iron, etc. by medical labs. तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं ये सब चेक करने के लिए, जो मिनरल्स है, विटामिन्स है, हीमोग्लोबिन, आयरन, वो हम क्या करते हैं कि प्री सीजन में जब कैंप लगता है तो हमारा टाई अप रहता है हॉस्पिटल के साथ, तो हम हर एक प्लेयर को वहाँ पर भेजते हैं। हमारा एक लिस्ट होता है फॉर अ मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर अ प्लेयर, कि वहाँ पर उनका यूरिन टेस्ट होता है, स्टूल टेस्ट होता है, चेस्ट एक्सरे होता है, ट्रेडमिल टेस्ट रहता है, आई टेस्टिंग रहता है। सो देयर आर सीरीज ऑफ टेस्ट, हम उनको लिस्ट देते हैं, वो हिसाब से हर एक प्लेयर का वो एग्जामिन करते हैं, और उनके हिसाब से वो हमको डेटा देते हैं कि इनमें ये कमियां हैं, तो ये मतलब विटामिन बी 12 कम है व्हाट्सएवर, या विटामिन डी 3 कम है, तो हमको पता चलता है, तो हम ऐसे सप्लीमेंट उनको प्रोवाइड करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस ना हो, और नाइसली you can balance and fill yourself with good nutrition. Yeah. The next one is biomarkers. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर एक बायोमार्कर्स है वो इंजरीज के साथ रिलेटेड रहते हैं। जैसे विटामिन डी डेफिशिएंसी किसी को है तो उनको स्ट्रेस फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा है। तो अगर कोई स्ट्रेस फ्रैक्चर के साथ कोई प्लेयर आपके पास आता है तो यू जस्ट सेंड हिम फॉर द रेगुलर मेडिकल चेकअप ऑफ विटामिन्स। फिर जो बोन मिनरल डेफिशिएंसी होती है वो भी अगर डेफिसिट है, डेंसिटी जो है वो डेफिसिट है, तो उनको भी स्ट्रेस फ्रैक्चर होने के चांसेस है। कैल्शियम कैल्शियम की कमी की वजह से, या विटामिन बी कम होने की वजह से, या आयरन डेफिशिएंसी, तो मतलब वो एसोसिएटेड है स्ट्रेस फ्रैक्चर से। देयर इज समथिंग कंकजन, सीरम S100B एंड REDs, BMD, ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर, उसमें जो बायोमार्कर्स है दैट इज IGF-1। तो ये सब बायोमार्कर्स भी हमको रेगुलर चेक करने चाहिए। ओके, अभी बायोमार्कर्स के असेसमेंट हम कैसे करते हैं? एज आई सेड कि हम प्री सीजन में जो कैंप रहता है उसमें बिफोर दैट हम लोग प्लेयर्स को हॉस्पिटल में रेगुलर चेकअप करवाते हैं एवरी ईयर, ठीक है? तो उसमें चेक करते हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस बाय TMT टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, आई विजन टेस्टिंग, PFT जो लंग्स फंक्शन टेस्ट होता है वो हम चेक करते हैं, यूरिन एंड स्टूल एग्जामिनेशन, एंड देन एलर्जी क्वेश्चनर कि कोई भी मेडिसिन की या कोई भी फूड की उनको एलर्जी ऐसा कुछ नहीं है। तो इस ये सब चेक करके हम इंजरी मिनिमाइज कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज मेडिकल इश्यूज। मेडिकल इश्यूज कोई प्लेयर्स को है या नहीं, तो उनके क्वेश्चनर्स लाइक पास्ट मेडिकल इश्यूज के पहले कुछ भी उनको इश्यूज हुए हैं, कोई एलर्जी है या इलनेस आई है कोई सी बड़ी, या फैमिली मेडिकल हिस्ट्री लाइक डायबिटीज है, ब्लड ब्लड प्रेशर है, या ऐसा कुछ फैमिली हिस्ट्री में है कि नहीं है। करंट मेडिकल कंडीशन, अभी कुछ मेडिकल कंडीशन है प्लेयर को, या तो ही इज अंडरगोइंग एनी कोर्स ऑफ मेडिसिन, जैसे बहुत सारे प्लेयर्स को हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो उसकी मेडिसिन लेते हैं, या तो किसी को लंग्स इश्यू होते हैं तो उसकी मेडिसिन उनकी चालू होती है। तो वी नीड टू कीप डेटा अबाउट दिस थिंग्स, करंट एंड पास्ट मेडिकेशन डिटेल्स। अभी कोई मेडिसिन, जैसे मैंने बोला कि पास्ट में क्या क्या मेडिसिन ली थी, या अभी कोई मेडिसिन लेते हैं कि नहीं। A medical fitness certificate issued by medical practitioner, अगर प्लेयर फिट है तो मेडिकल प्रैक्टिशनर बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द कैंप वो एक मेडिकल सर्टिफिकेट, फिटनेस का सर्टिफिकेट इश्यू करेगा, जो हमारे रिकॉर्ड में रहेगा कि नहीं।
हम कोई कुछ भी मतलब ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ उसको करवा सकते हैं एंड ही इज फिट टू प्ले। तो नेक्स्ट वन इज एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, लाइक उसमें भी मॉडिफाइबल या नॉन मॉडिफाइबल। तो इंट्रिंसिक हम लोग इंटरनल बॉडी में क्या क्या चेंज कर सकते हैं, दैट कम्स अंडर इंट्रिंसिक। नाउ विल सी अबाउट एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो बाहर है, तो उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज मॉडिफाइबल। तो प्रोटेक्टिव गैजेट्स है तो वो हम चूज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे क्रिकेट में तो हेलमेट हम प्रॉपर कंपनी का यूज करते हैं, या तो शिन पैड, थाई पैड, या तो एल्बो गार्ड्स वगैरह हम अच्छी कंपनीज के यूज कर सकते हैं। जैसे हम एक बार अगर बॉल लगती है हेलमेट पे, तो रिसर्च ये कहता है कि वो हेलमेट बदल देनी चाहिए, क्योंकि इंटरनली वो ब्रेक हो जाता है, तो हम तुरंत ही वो हेलमेट बदल देते हैं। सो दिस दैट इज सो दैट इज मॉडिफाइबल। तो सेकंड इज प्लेइंग टाइम, मॉर्निंग और इवनिंग। समर में जब हमारा कैंप लगता है तो वी अवॉइड प्रैक्टिसिंग आफ्टर 10:30 टिल 4:30, क्योंकि तभी बहुत धूप होती है, ह्यूमिड भी थोड़ा बहुत रहता है, टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, तो देयर आर चांसेस के हीट स्ट्रोक लगे, सन स्ट्रोक लगे, फेंटिंग होता है प्लेयर्स को, या कंप्लीट बहुत सीवियरली डिहाइड्रेटेड हो जाता है प्लेयर। तो हम वो प्रैक्टिस का जो भी टाइम है वो चेंज कर सकते हैं। कब या तो अर्ली मॉर्निंग रखेंगे समर में, या तो लेट इवनिंग में रखेंगे। प्लेयर पोजीशन, कोई प्लेयर है तो उसको मतलब थोड़ा सा टायर्डनेस या थकान लगती है, तो हम लोग उनकी पोजीशन चेंज करते हैं। दारो के अगर सेकंड या थर्ड उसका नंबर है, तो हम उसको सिक्स या सेवन पोजीशन में भी रख सकते हैं, ताकि उसको इन बिटवीन टाइम मिले रिकवर होने का प्रॉपरली। तो हम वो भी प्लेयर्स की पोजीशन भी इन टीम स्पोर्ट्स हम चेंज कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज नॉन मॉडिफाइबल ग्राउंड सरफेस। हम ग्राउंड सरफेस कहीं पर भी हम खेलने जाएंगे तो वो हम चेंज ऑल ऑफ अ सडन नहीं कर सकते। अगर अनइवन ग्राउंड हुआ या ग्राउंड सरफेस थोड़ा वेट रहा, स्लिपरी रहा, तो हम वो चेंज नहीं कर सकते हैं, तो उनको उसमें हमको खेलना ही पड़ेगा। द नेक्स्ट वन इज फुटवेयर एट अ टाइम ऑफ प्ले। अगर कोई प्लेयर है कि जो फुटवेयर मतलब उसके ठीक नहीं है, या तो उसको फ्लैट फुट है पर फुटवेयर लो आर्च के, हाई आर्च के नहीं है, तो एट अ टाइम उसकी साइज के कोई दूसरे के पास से वो ले नहीं सकेगा। So at a time of play, we cannot change, but eventually, like next day or after that, we can change it. And then weather condition, अगर all of a sudden बारिश आती है तो वो हम चेंज नहीं कर सकते। all of a sudden ठंड, मतलब पूरा दिन अगर हमको मैच खेलनी है, कि जैसे मॉर्निंग से स्टार्ट करेंगे इवनिंग तक मैच जाएगी, तो तभी ठंड है तो वो हम चेंज नहीं कर सकेंगे। तो मैच के टाइम में जो वेदर कंडीशन रहती है उसका हमको सामना करना ही है, और थोड़ा उसके प्रोटेक्टिव गैजेट्स के साथ हम लोग उसमें खेल सकते हैं। सो दिस ऑल आर अबाउट रिस्क फैक्टर्स, कि जिसको हम ध्यान रख के हम इंजरी को मिनिमाइज करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आपने देखा ये रिस्क मिटिगेशन, रिस्क फैक्टर को हम मॉडिफाई करके या उसका असेसमेंट करके हम कैसे इंजरी को मिनिमाइज कर सकते हैं, हम प्लेयर्स को कैसे पूरा सीजन फिट रख सकते हैं, या हम ट्राई कर सकते हैं हमारी बेस्ट एज बीइंग कोच, बीइंग फिजियोथेरापिस्ट, वर्किंग विद द टीम, या बीइंग स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच। हमको ये सब चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। हमको पीरियोडिकली सबके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ, कोच के साथ, ट्रेनर्स के साथ, फिजियो के साथ हमको कोऑर्डिनेट करके, और प्लेयर्स को ऐसा नहीं लाइक स्टीरियोटाइप कोचेस आई हैव सीन कि वो बीच में पानी नहीं पीने देते थे। हमारे क्रिकेट में भी ऐसे थे कि जो बीच में पानी नहीं, तो वी हैड टू इंटरफियर इन बिटवीन। बहुत बार ऐसे भी कोचेस थे कि जो पूरा पूरा टाइम बॉलिंग डलवाते थे प्लेयर को, लाइक ढाई ढाई घंटा नेट प्रैक्टिस में बॉलिंग डलवाते थे। तो तभी क्या होता था कि उनका ये सोचना था कि प्लेयर्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, पर उसका इफेक्ट ये हुआ कि नेक्स्ट डे मैच में प्लेयर ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाया। बहुत सारे तो, और अभी रिसेंटली हमारे साथ मतलब इतने अच्छे कोचेस हैं कि जो प्रॉपर कोऑर्डिनेट करते हैं। तो साइंटिफिकली हम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें, बातें करेंगे, तो हम उन लोगों का भी आइडिया क्लियर होगा, हमारा भी काम अच्छी तरीके से होगा, और प्लेयर्स को भी हम ऑल द टाइम हमारे पास अच्छे प्लेयर्स रहेंगे जो प्रॉपरली रिकवर्ड हो, प्रॉपरली
ट्रेंड हो और उनका जो इफेक्ट जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट वो दे सके. So this is all about injury minimization. That is it. Thank you so much. Jitwa sir? Thank you, sir. Have you completed? Yeah, this topic. Okay, so you are going to take next lecture, sir. Yeah, that's fine. That's fine with me. So you want to continue, or we have some break? We want some break. No, that's fine. That's fine with me. So please, sir, continue, sir. I'll continue. Yeah. Just okay. This is very important topic, injury management. क्योंकि see basically ये होता है कि जब हम कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, चाहे वो क्लब लेवल हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल हो या कोई सा भी लेवल पे हम खेलते हैं, तो हमको किसी ना किसी टाइम इंजरी होना ही होना है. दैट इज अनअवॉइडेबल. किसी के लाइफ में वैसा नहीं हो कि कोई कभी इंजर्ड ही नहीं हुआ होगा. ठीक है, तो हमको नॉलेज ऑल द टाइम, ऐसा नहीं कि आपके साथ फिजियोथेरापिस्ट या कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा ही होगा या आपके पास उसके रिलेटेड सब सामान होगा ही होगा. वो ऑल द टाइम रहेगा ही नहीं. बहुत बार ऐसा होता है कि वी आर हेल्पलेस. वो टाइम पे पता नहीं चलता है कि हम लोग क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे. तो हमको उसका फर्स्ट एड जो है, जो बेसिक ट्रीटमेंट या इनिशियल एक्यूट फेज ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, तो हमको वो चीज़ का पता होना चाहिए, जिसकी वजह से हम उसका एक्यूट पार्ट, जो इनिशियल पार्ट ऑफ द इंजरी है, तो वो हम मैनेज कर सकेंगे ऑन द स्पॉट. So this is very important for the coaches, for all the support staff, for trainer and for the physiotherapist as well. और प्लेयर्स के लिए भी ये इतना ही इम्पोर्टेंट है. तो फर्स्ट एड एंड इंजरी मैनेजमेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू विच कम अक्रॉस ऑलमोस्ट ऑल द टाइम. जैसे एज आई सेड कि कोई भी प्लेयर नहीं होगा जिस जो इंजर्ड नहीं हुआ होगा. फर्स्ट एड सिंपली मीन्स द वेरी फर्स्ट एंड बेसिक ट्रीटमेंट वी डू आफ्टर एनी इंजरी. कोई सी भी इंजरी है, उसके बाद क्या हम पहली चीज करेंगे, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एड. मोस्ट ऑफ द टाइम वी डू रॉन्ग ट्रीटमेंट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज. हमारे पास नॉलेज नहीं होता है, तो हम बहुत बार गलत गलत चीज करते हैं. उसके हिसाब से उसके ड्यू टू दैट क्या होता है कि इंजरी बढ़ जाती है. या तो जो इंजरी एक हफ्ते में ठीक होने वाली हो, पर हम इतना बिगाड़ देते हैं कि वो एक महीने में ठीक होती है. तो हम जो रिकवरी का टाइम भी है वो भी हम डिले करते हैं ड्यू टू द मिस प्रैक्टिस और माल प्रैक्टिस. Okay, now aims and priorities of first aid. क्या क्या aims है उसके? To preserve life, किसी की life भी हम save कर सकते हैं. To prevent the casualties condition from worsening. जैसे कोई injury हुई, as I said, कि हम उसको जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हैं, उसको खराब होने से रोकते हैं. To promote recovery. Recovery हम पहली जो first aid में क्या करते हैं, first few hours में या first few days में क्या हम करते हैं, उसके उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी रिकवरी कितनी ठीक होगी या कितनी जल्दी होगी. तो क्या नहीं करना चाहिए, जो हम ऑलमोस्ट ऑल द टाइम हम लोग ये चीज करते हैं, जो नहीं करनी चाहिए. देयर आर सर्टेन थिंग्स वी मस्ट अवॉइड आफ्टर एनी इंजरी फॉर 48 आवर्स. दोज आर, क्या हमको पहले 2 दिन नहीं करना चाहिए हीट. बहुत बार कोचेस अपने पास हीट स्प्रे रखते हैं या हॉट पैक्स रखते हैं. कुछ भी हो तो हीट स्प्रे डालते हैं. मुंह का जो स्प्रे आता है, रिलीज स्प्रे आता है, वो अगर रखते हो तो आपकी किट में से हटा दीजिए प्लीज, क्योंकि वो बहुत गलत चीज है. हीट दोगे तो क्या होगा. और जो भी, अगर एक एग्जांपल लूं कि किसी का एंकल ट्विस्ट हो गया, तो वहां पर क्या होगा, स्वेलिंग होगा. तो अगर आप हीट वहां पर अप्लाई करते हो तो वहां पर वैसा डायलेशन होगा. मतलब जो वेन से, जो आर्टरी से वहां पर ब्लड पहुंचाती है, तो वो डायलेट होगी, तो और ज्यादा ब्लड वहां पर आएगा, वहां पर एक्यूमुलेट होगा, तो और ज्यादा स्वेलिंग बढ़ेगा. जितना ज्यादा स्वेलिंग बढ़ेगा, वो कंट्रोल नहीं होगा, तो आपकी जो रिकवरी है वो डिले होती जाएगी. 1 हफ्ते में जो प्लेयर ठीक होने वाला है, उसको 3 हफ्ते लगेंगे. तो कभी भी फर्स्ट 48 आवर्स में
हीट स्प्रे या हॉट पैक्स घर पे जाते हो तो हॉट पैक्स घर पे बोलते हैं पेरेंट्स की हॉट पैक्स लगाओ, तो वो कभी भी मत लगाना, इज नॉट गुड। सेकेंड वन इज अल्कोहल। अल्कोहल फर्स्ट 48 आवर्स तक अवॉइड करो, क्योंकि वो इम्पेयर करता है, हीलिंग को इम्पेयर करता है, वो जो ब्लड फ्लो रहता है उसको इम्पेयर करता है, उसको इम्बैलेंस करता है, तो अल्कोहल मत लो। द थर्ड वन इज रनिंग। जैसे कि प्लेयर इंजर्ड होता है तो उसको एडवाइस मत दो कि कीप ऑन, मतलब कोई भी कोच या ट्रेनर या फिजियो के पास कोई प्लेयर आता है बोलता है कि सर यहाँ पर मुझे पेन हो रहा है, तो उसको लाइटली मत लो, उनको तुरंत ही बोलो कि रनिंग अवॉइड करें, ठीक है, या इंजर्ड हुआ है तो रनिंग अवॉइड करें, उसको प्रॉपर सपोर्ट देके उसको बाहर लेके आओ या तो रेस्ट करने का बोलो। एंड फोर्थ वन इज मसाज। मसाज भी बहुत गलत चीज़ है। हम लोग कुछ भी होता है, कहीं पर भी कोलिजन होता है, दो प्लेयर्स टकराते हैं या कोई बॉल लगती है या कुछ भी होता है, हम वी स्टार्ट रबिंग द एरिया, सर पे भी लगता है, वी स्टार्ट रबिंग द एरिया। इट इज़ वेरी रॉन्ग थिंग व्हाट वी आर डूइंग इन डेली लाइफ। कभी भी मसाज, दो चीज़ होती है मसाज देने से, एक तो टेम्परेचर इंटरनल है वो इंक्रीज होता है, तो अगेन स्वेलिंग है वो बढ़ता है। सेकेंड थिंग, आपको पता नहीं है कि अंदर फ्रैक्चर हुआ है या नहीं हुआ है, तो अगर क्या होता है कि कोई अंदर फ्रैक्चर हुआ है तो सराउंडिंग जो एरिया आप मसाज देते हो तो आप उसको हड्डी को हिलाते हो, उसकी वजह से ये होता है कभी कभी कि अंदर जो नर्व्स है या वेन्स है वो भी डैमेज होने के चांसेस है, तो आप इंजरी को और बिगाड़ देते हो, तो कभी भी मसाज मत लो। तो ये चार चीज़ें इटसेल्फ इट इज कॉल्ड हार्म, तो वो प्लीज अवॉइड करो और दूसरों को भी एजुकेट करो, आपके घर पे भी एजुकेट करो कि कुछ भी हो तो ये चार चीज़ें मत करें। The next one, heat. जैसे मैंने बोला, whenever someone gets injury, any kind of sprain or strain, we start giving heat by means of hot packs, heat sprays like Rayleigh spray, Move, etc. In this case, you are actually increase the injury. When you give heat, our blood vessels get dilated, so more blood and fluid reaches to injured part. Because of that, there is more swelling persist, which delays recovery and worsen the injury. The second, alcohol. Avoid having alcohol at least 48 hours after injury. Alcohol alters sensation and blood flow in the body, so there might chance to delay healing. Running or any activity, stop running or any sort of activity. Keep on being active after injury may increase injury by increased blood flow in the body. Fourth one is massage. A very big mistake we often do is rubbing or massaging the area soon after injury. In condition like fracture, even without knowing, if we start rubbing, we make it more vulnerable. Sometimes tissue inside breaks down more while doing it. Again, massage will increase blood flow and swelling, thus worsen the injury. तो नेक्स्ट वन इज हमको क्या करना चाहिए? द बेस्ट थिंग, याद रखो प्राइजर, याद रखो ये चीज, जो 6 चीज है वो हम लोग परफेक्टली एक्यूट इंजरी का मैनेजमेंट या फर्स्ट एड में हम ये चीज कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज पोजिशनिंग। टेक द प्लेयर पेशेंट आउट फ्रॉम द एक्टिविटी एरिया सून आफ्टर वो इंजर्ड होता है, आपने देखा, हेल्प कराने जाओ प्लेयर को, अगर फिजियो अवेलेबल नहीं है तो जो भी इंजर्ड पार्ट है उसको प्रॉपरली स्टेबलाइज करो, वो हिले नहीं, वो ध्यान रखो। पुट हिम इन द काम शेडेड और वेंटिलेटेड एरिया। एक साथ सब लोग वहां पर मत आ जाओ, प्लेयर ऑलरेडी एजिटेटेड होता है, इरिटेटेड होता है। अगर घेरा बना के रखोगे, ग्रुप बना के आसपास रखोगे तो उसको ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वो मत करो, ठीक है, उसको थोड़ा स्पेस दो, आराम से शेड्स के अंदर लेके आओ जहाँ पर अच्छा वेंटिलेशन हो या ठंडक हो, एसी हो, फैन प्रॉपर हो, वहां पर वो एरिया में उसको रखो। Make the patient in the position where he doesn't get more pressure or strain at the injured part. ये पोजीशन में उसको रखो कि वहां पर उसको ज्यादा प्रेशर या पेन ना हो, so that is called position of ease. तो जहाँ पर उसको कंफर्टेबल लगता है वो पोजीशन में उसको बैठाओ और लेटाओ। The next one is rest. Immediately stop any further movement or activity. जैसे मैंने बोला कि उसको पुश मत करो, कोई भी प्लेयर बोलता है मुझे यहाँ पर कुछ लग रहा है, पेन आ रहा है, तो ऐसा मत बोलो कि नहीं तू बहानेबाजी बनाता है, तू कंटिन्यू रख, तेरा हमेशा से प्रॉब्लम, ऐसा नहीं होता है। वो एक्चुअली, क्योंकि कोई भी प्लेयर नहीं चाहेगा कि उसकी उसकी मैच मिस हो जाए, ठीक है, हर एक प्लेयर चाहता है वो पूरा मैच खेले, वो आगे बढ़े। तो ऐसा मोस्टली नहीं होता, जो प्लेयर कंप्लेन करता है वो सही रहती है।
तो अगर कोई कंप्लेन लेके आता है तो इमीडिएटली स्टॉप एनी फर्दर मूवमेंट और एक्टिविटी. एडवाइस टू डू प्रॉपर रेस्ट टिल ट्रीटमेंट इज ओवर. उसकी जब तक पूरी ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हो जाती है उसको बोलो प्रॉपर रेस्ट करें. टू प्रिवेंट मोर डैमेज टू द इंजर्ड पार्ट, continued active movement of the injured part will result in increased bleeding and swelling. अगर आप उसको बोलोगे कि एक्टिविटी चालू रख तो उससे क्या होगा, और ज़्यादा इंटरनल ब्लीडिंग होगा और ज़्यादा स्वेलिंग बढ़ेगा. ठीक है, तो रेस्ट कराओ प्रॉपरली. The next one is ice. Ice is most important factor. If the part is not bleeding, keep the ice for 8 to 10 minutes. Keep repeating 3 to 4 times a day for next 48 to 72 hours. ठीक है, आइस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर ब्लीडिंग होता है कोई भी पार्ट पे तो आइस अप्लाई मत करो, क्योंकि डायरेक्ट आइस एप्लीकेशन पे से हमको पता नहीं कौन सा पानी यूज किया है. ठीक है, तो अंदर गंदा पानी जाएगा, उसके लिए उसकी वजह से उसको पस या इन्फेक्शन होने के चांसेस है. तो अगर कट हुआ है, ब्लीडिंग हुआ है, तो उसके ऊपर प्लीज आइस यूज मत करिए. या तो आप एक काम कर सकते हो, प्लास्टिक रैप जो आता है वो ब्लीडिंग के पार्ट के ऊपर लगा दो और उसके ऊपर आइस अप्लाई कर सकते हो. कीप द आइस फॉर 8 to 10 मिनट्स, 8 से 10 मिनट तक रखो. और हर एक 3-4 घंटे में दिन में 3-4 बार आप आइस अप्लाई कर सकते हो 2 से 3 दिन के लिए. उससे क्या होगा कि स्वेलिंग मिनिमाइज होगा और रिकवरी बढ़ेगी, पेन भी कम होगा. Ice has opposite effect to heat, so it constricts, narrows the blood vessels. तो वो क्या करता है, जैसे हीट में हमने देखा वैसो डायलेटेशन होता है, जो नर्व से वो उसका जो एरिया है वो जो वेन से उसका एरिया डायलेट हो जाता है. वैसे अगर आइस एप्लीकेशन करोगे तो ब्लड वहां पर कम पहुंचेगा, वो कंस्ट्रिक्ट करता है, वो नैरो कर देता है आर्टरीज को. तो वहां पर ब्लड कम पहुंचेगा तो ऑटोमेटिकली स्वेलिंग रिड्यूस होगा एंड इंजरी विल हील फास्टर. तो हीलिंग जो है आपका वो फास्ट रहेगा. इफ यू वांट पेन रिलीफ स्प्रे, यूज आइस स्प्रेस. आइस स्प्रेस बहुत सारे यहाँ पर मिलते हैं, मार्केट में भी अवेलेबल है, वो आप यूज कर सकते हो. इन इंडिया देयर आर मेनी स्प्रेज लाइक कुलेक्स, जो कोई जो नॉर्मल मेडिकल स्टोर में भी मिल जाता है, या डीप फ्रीज करके जो थोड़े एडवांस स्प्रे आते हैं वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तो वो आप रख सकते हो आपके पास. इवन आइस हैज पेन ब्लॉक इफेक्ट, पेन ब्लॉक कर देता है, so it is useful to give relief from pain too. To be applied only when awake. प्लेयर जब होश में रहता है, अवेक रहता है, तभी अप्लाई करो. ये आपको पता नहीं कि अंदर उसको आइस के रिगार्डिंग फ्रॉस्ट बाइट, या मतलब बहुत ज्यादा अगर आइस आपने बहुत ठंडा किया या बहुत ज्यादा टाइम रख दिया तो अंदर जो स्किन होती है वो रेडनेस हो जाती है पूरी, उसको हम फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं. तो वो नहीं हो. इस वजह से हम जब प्लेयर्स अवेक रहता है तभी हमको आइस अप्लाई करना चाहिए, तो उसको पता चले. The next one is compression. Giving compression by means of elastic crab bandage help to reduce swelling or internal bleeding. ठीक है, हम कोई से भी क्रैप बैंडेज जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जो हम यूजुअली पिंक कलर की मेडिकल स्टोर में मिलती है, तो वो हम अप्लाई कर सकते हैं. उससे स्वेलिंग रिड्यूस होगा और इंटरनल जो ब्लीडिंग होता है वो भी बंद हो जाएगा. It aids stability and immobilization to the injury, so prevent from further damage in condition like fracture or muscle tear. अगर कुछ अंदर फ्रैक्चर है या तो मसल टेयर है तो हम उसको इमोबिलाइजेशन स्टेट में रख सकते हैं, या उसको हम स्टेबिलिटी देते हैं. अगर आपके पास कोई कंप्रेशन मतलब आपके पास अगर क्रैप बैंडेज या ऐसा कुछ भी नहीं है तो सिंपली आप अगर आपके पास हैंकरचिप है या कुछ भी नैपकिन या टॉवल कुछ भी है, तो आप उसके ऊपर इंजर्ड एरिया जो भी है उसके ऊपर आप लगा सकते हो, उसको टाई कर सकते हो. इन कंडीशन लाइक फ्रैक्चर्स आप एकदम मतलब अगर आपके पास कुछ स्टिक है, आपके पास ये कंप्रेशन बैंडेज नहीं है, तो कोई सा भी आपके पास स्टिक है वो लगा के ऊपर नीचे उसको स्टिक को वही एरिया में लगा के आप ऊपर नीचे उसको रुमाल या टॉवल से आप लपेट सकते हो, तो इमोबिलाइजेशन में पार्ट रहेगा. या तो न्यूज़पेपर है उसको आप रोल करके भी वहां पर सपोर्ट के लिए आप लगा सकते हो. The next one is elevation. Elevation of the injured part reduces blood flow to the injured area and encourages return of venous blood and lymph. तो क्या होता है, अगर एंकल
पे लगा है तो बेसिकली क्या होता है कि वो हार्ट के लेवल से ऊपर रहना चाहिए। तो उसकी वजह से क्या होगा, विद द असिस्टेंट ऑफ ग्रेविटी वो एलिवेटेड रहेगा, तो वहाँ से जो भी स्वेलिंग है, जो ब्लड है या अदर फ्लूइड है, तो वो विद असिस्टेंट ऑफ ग्रेविटी फिर से सिस्टम में आ जाएगा, तो वहाँ पर स्वेलिंग कम रहेगा। जैसे हम एडवाइस करते हैं बहुत लंबे टाइम तक जो बैठते हैं नीचे पैर रख के, उनको स्वेलिंग ज़्यादा आती है। अगर कुछ अंडरलाइंग पैथोलॉजी रही तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि ऊपर पैर लेकर बैठो। सेम हियर कि जो भी पार्ट है उनको हार्ट के लेवल से एलिवेटेड रखना है ताकि हम स्वेलिंग को मिनिमाइज कर सकें। दिस कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग अ स्लिंग। अगर हाथ में लगा है, शोल्डर पे लगा है, तो हम एक उनको नेक के सराउंडिंग, आपको पता होगा बहुत सारे लोग स्लिंग रखते हैं और हाथ को उसके ऊपर सपोर्ट करते हैं ताकि हार्ट के लेवल से वो ऊपर रहे। बाय रेस्टिंग लोअर लिम्स ऑन द चेयर, पिलो और अ बकेट, उसको एक सीट पर बैठा हो, दूसरी चेयर सामने रखो और पैर को दूसरी चेयर के ऊपर रख दो, या तो अगर लेटे हो तो एक पैर के नीचे एक पिलो रख दो। तो ये सब चीज़ें हम ध्यान में रख सकते हैं एलिवेशन के लिए। एंश्योर लोअर लिम्ब इज अबव द लेवल ऑफ पेल्विस, ठीक है, पेल्विस के लेवल से ऊपर रखो तो ग्रेविटी असिस्टेड स्वेलिंग कम होगा। द नेक्स्ट वन इज रेफरल। रेफर द इंजर्ड प्लेयर फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो अभी हमने ये सब चीज़ कर दी, उनको पोजिशनिंग कर दी प्लेयर की, उसको रेस्ट दे दिया, उसको आइस अप्लाई किया, उसको कंप्रेशन दिया और उसको एलिवेशन दिया। ये सब हमने फर्स्ट एड की चीज़ें कर ली। अभी पार्ट है वो फर्दर इवेल्युएशन का है, या तो उसको कोई स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट के पास लेके जाओ, या तो अगर इंजरी बड़ी है उसको एक्सरे, एमआरआई या सीटी स्कैन की ज़रूरत है तो तुरंत आपका जो भी टाई अप हो, जो भी हॉस्पिटल के साथ या जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर के साथ आपकी टीम का टाई अप हो, तो उसको फ़ोन करो और प्लेयर को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजो। आगे क्या मैनेजमेंट करना है, इंक्लूडिंग मेडिकेशन, फिजियोथेरेपी एक्सेट्रा। टिटेनस टॉक्साइड इंजेक्शन, अगर किसी को ब्रूज आई है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो टिटेनस टॉक्साइड इंजेक्शन, टीटी इंजेक्शन इज मैंडेटरी, तो रेफरल के लिए भेज दो। So these all things we can do on the first aid. These all things we need to remember every time about managing a player. Now we'll see, मैं थोड़ी मतलब कंडीशंस आपके सामने एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि ये सब कंडीशंस में हम क्या कर सकते हैं। दैट इज डिफरेंट कंडीशन। आपने देखा होगा ब्लो टू जेनिटल्स बॉल लगती है जब गार्ड के एरिया में, तब क्या होता है, दैट इज वेरी पेनफुल, क्योंकि वहाँ पर जेनिटल्स है, वहाँ पर नर्व एंडिंग सबसे ज्यादा रहता है बॉडी में, तो थोड़ा सा भी वहाँ पर लगता है तो बहुत सारा पेन होता है, तो दैट इज वेरी पेनफुल। May stun a local nerves causing temporary breathing problem। बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, लोकल नर्व पिंच होती है, तो उससे उससे ड्यू टू पेन आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है टेम्पररी। मे कोज नोजिया, वॉमिटिंग जैसा लगता है, स्लो पल्स रेट स्लो हो जाते हैं, फेंटिंग, कभी बार डिजीनेस, ड्राउजीनेस भी लगता है, इवन सेंट्रल एब्डोमेन पेन, थोड़ा सा ऊपर एब्डोमेन में, स्टमक में जो है वो पेन होना चालू हो जाता है। टेस्टिकुलर ब्लीडिंग में होकर ओकेजनली, बहुत रेयरली टेस्टिकुलर ब्लीडिंग भी हो सकता है, तो उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। आइसिंग में भी पेनफुल, कोल्ड कंप्रेस इज बेटर ऑप्शन। एज आई सेड, वहाँ पर नर्व्स एंडिंग बहुत ज़्यादा रहता है, तो आइसिंग आप डायरेक्टली आइस एप्लीकेशन करोगे तो बहुत ज़्यादा पेनफुल रहेगा। तो इस बेटर के आप कोल्ड कंप्रेशन रखो वहाँ पर। अगर आपके पास कोल्ड टॉवल है या कोल्ड वाटर है, उसमें टॉवल को भिगो कर वहाँ पर आप रख सकते हो। Couch their breathing, short breathing, long breathe out to relax muscles। आप उसको ऐसे पोजीशनिंग जैसे पिक्चर में दिखाया है वैसे पोजीशनिंग में रख के उसको आप एजुकेट कर सकते हो। शॉर्ट ब्रीथ इन लेना है और लॉन्ग ब्रीथ आउट करना है, तो उसका ब्रीदिंग कंट्रोल में आता है, थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं प्लेयर्स। एडवाइज नॉट टू पास यूरिन टिल पेन सबसाइड्स। पेन जब तक पूरी तरीके से सबसाइड नहीं होता है तब तक यूरिन पास नहीं करना है, क्योंकि हमको पता नहीं कि इंटरनल ब्लीडिंग है या नहीं है। अगर पेन लंबे टाइम तक रहता है तो हमको सॉरी या तो अगर पेन उनको ज़्यादा है या बहुत लंबे टाइम तक रहता है तो उसको फर्दर इवेल्युएशन के लिए हमको लेके जाना पड़ेगा। इस वजह से उनको बोलो कि जब तक पेन ठीक नहीं होता है, एकदम सबसाइड नहीं होता है, तब तक यूरिन पास ना करें। इफ ब्लड अपीयर्स सिक, मेडिकल एडवाइस, तुरंत ही अगर ब्लीडिंग होता है तो तुरंत ही
मेडिकल इन्वेस्टिगेशन करवाओ या रेफरल दो. Same for bending blow to upper abdomen. ठीक है. So these all things you can do for the condition like blow to genitals. The next one is muscle cramp. ये भी frequent सबको आती है muscle cramp regular basis पे. बहुत लोगों को night cramps भी आते हैं, बहुत को on field cramps आते हैं. So what is that and how we can manage it? A sudden involuntary contraction of one or more muscles. ठीक है. एकदम all of a sudden कैच हो जाते हैं एक मसल या बहुत ज्यादा बार ऐसा होता है कि बैंड करोगे तो हैमस्ट्रिंग क्रैम्प जो सीवियरली डिहाइड्रेटेड प्लेयर हो जाते हैं, जो बहुत ही हॉट कंडीशंस में जिसकी प्रैक्टिस लगी रहती है, उन लोगों को ऐसा भी होता है कि अगर स्ट्रेट करो तो क्वाड्रिसेप्स में क्रैम्प आते हैं, बैंड करो तो हैमस्ट्रिंग में आते हैं या तो काफ में चालू हो जाते हैं. सो वन और मोर मसल्स गेट इन्वॉल्व ऑफन ड्यू टू लैक ऑफ मेजर डिहाइड्रेशन. जो सॉल्ट्स है, न्यूट्रिएंट्स है, वो सब मसल्स में से खाली हो जाते हैं. व्हेन बॉडी गेट्स सीवियरली डिहाइड्रेटेड, स्ट्रेनियस एक्सरसाइज और लैक ऑफ मसल यूज. ठीक है. तो ये सब ड्यू टू ऑल ऑफ दिस मसल क्रैम्प्स के एपिसोड बढ़ जाते हैं. ट्रीटमेंट क्या करनी चाहिए? फ्लूइड रिप्लेसमेंट, प्रिफरेबली कोल्ड वाटर अलोंग विथ इलेक्ट्रोलाइट्स. तो हमेशा कोल्ड वाटर ही दो प्लेयर्स को. कोल्ड वाटर हैज द प्रॉपर्टी टू लीव स्टमक क्विकली. और सिस्टम में मतलब क्या होता है जब हम कोल्ड वाटर पीते हैं तो वो स्टमक में से जल्दी एम्प्टी होके सिस्टम में चले जाता है. हॉट वाटर जब हम पीते हैं तो स्टमक में बहुत देर तक रहते हैं और सिस्टम में जाने में देर लगती है. तो हमेशा जब प्रैक्टिस करते हो या मैच खेलते हो तो प्रीफर करो कोल्ड वाटर पीना. और उसके साथ इलेक्ट्रोलाइट्स मिक्स करो. अगर कोई और इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है तो यहाँ पर सिंपल और वेरी गुड WHO रेकमेंडेड इलेक्ट्रोलाइट्स है जो हमारा इलेक्ट्रल पाउडर है, तो वो एक अपनी किट बैग पे रखो. अगर ऐसा क्रैम्प आता है तो पहले ही प्लेयर को ये दो. या तो कुछ नहीं है तो सॉल्ट है, घर का नीमक है, वो आप ऐड कर सकते हो वाटर में और वो आप पी सकते हो. प्रोलॉन्ग जेंटल स्ट्रेच, एकदम जेंटल धीरे धीरे स्ट्रेच दो उसको. 20-25-30 सेकंड तक वो स्ट्रेच होल्ड करो. ऑल ऑफ अ सडन क्विक स्ट्रेच मत करो या बहुत ज़्यादा प्रेशर से स्ट्रेच मत करो. उसको प्रोलॉन्ग जेंटल स्ट्रेच दो प्लेयर को. मसाज आप वो टाइम में आप मसाज कर सकते हो. मसल क्रैम्प है, एक याद रखो कि कुछ टाइटनेस है या क्रैम्प है, दैट इज मसल टाइटनेस. टाइटनेस के टाइम पे आप मसाज दे सकते हो. जब स्ट्रेन होता है या टेयर होता है या फ्रैक्चर होता है वो कंडीशन में आप मसाज नहीं दे सकते हो. सो यू नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन एंड मेक श्योर बिटवीन मसल क्रैम्प, मसल टाइटनेस एंड मसल टेयर. ठीक है. तो मसाज तभी आप दे सकते हो जेंटली. एंड हॉट पैक्स, तभी आप हॉट पैक्स भी यूज कर सकते हो क्योंकि उसकी टाइटनेस है वो जल्दी रिलीव हो जाए. तो ये कंडीशन पे आप ऐसे मैनेज ये कंडीशन को कर सकते हो. द नेक्स्ट वन इज CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन. ये सबको अभी मैंने देखा था आई गेस 2 दिन पहले ही डॉक्टर ने या कोई सर ने इसके ऊपर आपको एजुकेट किया था. फिर वी विल गो थ्रू क्विकली. CPR ये चीज़ है कि इट एड्स ऑन लाइफ, समबडीज लाइफ. तो हम सब लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए. उसके अपडेटेड कोर्सेज रहते हैं तो हर 2 साल में हमको उसका सर्टिफिकेशन कोर्स, तो 3-4 घंटे का कोर्स रहता है. रेड क्रॉस सोसाइटी ऑल ओवर इंडिया वो कंडक्ट करते हैं. या तो बहुत सारी हार्ट हॉस्पिटल्स है वो भी ये कोर्सेज, सर्टिफिकेशन कोर्सेज कंडक्ट करती है. तो वहाँ पर जाके हमको वो हर एक 2 साल में अपडेटेड कोर्स करना चाहिए. कभी आप किसी को मदद रूप हो सकोगे या इमरजेंसी में आप CPR से किसी की लाइफ सेव कर सकते हो. So it may save someone's life used in condition like sudden cardiac arrest or heart failure. You never know. अभी बहुत सारे किस्से आए हैं जो प्लेयर्स को सडन कार्डियक अरेस्ट भी आते हैं और हार्ट फेलियर हो जाता है. जब हार्ट बीट बियॉन्ड देयर कैपेसिटी, बियॉन्ड हार्ट्स कैपेसिटी बढ़ जाते हैं तभी ये होने के चांसेस ज़्यादा है. Every person related to sports and social welfare must learn CPR from affiliated institute like Red Cross. जैसे मैंने बोला सबको पता होना चाहिए ये चीज़. ओके, स्टेप बाय स्टेप CPR गाइड. जैसे फर्स्ट मैंने दिखाया शेक एंड शाउट. प्लेयर जब कोई भी प्लेयर या कोई भी इंसान को आप कोलैप्स होता देखो, उसको शेक करो, अलर्ट करो, शाउट करो आर यू देयर करके, पिंच करो उसको. अगर कोई वो रिस्पॉन्स नहीं देता है तो द फर्स्ट थिंग इज कॉल 911. वी कैन कॉल हियर इन इंडिया 108.
हम कॉल करके एम्बुलेंस को बुला सकते हैं वो एरिया में। तो फर्स्ट थिंग, कॉल बिफोर डूइंग एनीथिंग, कॉल 108, ठीक है। उसके चेक करो ब्रीदिंग, ऐसे सर ऊपर रख के आप ब्रीदिंग चेक कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कहाँ पर आपको पल्पेट करना है, कहाँ पर आपको पल्स चेक करना है। अगर आप कोर्स करोगे तो उसमें आपको ट्रेन करेंगे, ठीक है। चेक फॉर द ब्रीदिंग, अगर ब्रीदिंग कम हो जाता है, ये पल्स धीरे धीरे कम होते दिख रहे हैं या ब्रीदिंग कम होता है, ब्रेथलेसनेस हो जाती है, वो प्लेयर जो भी प्लेयर या कोई भी पर्सन वो सांस लेना बंद कर देता है ये कंडीशन में, उसके पल्स चेक करो, वो भी धीरे धीरे कम होते जाते हैं। सो दिस थिंग, प्लेस योर हैंड एट द सेंटर ऑफ द चेस्ट, ऐसे आप रखो, उसको पुश करो, push hard and fast about twice per second and then repeat it, ठीक है। So these all are maneuver, कैसे हम CPR कर सकते हैं। जब आप कोर्स करोगे तो आपको डिटेल में वो पता चलेगा। Now ideal kit of first aid आप सबके पास, being professional players or being coach or being physio, being trainer, आपके सबके पास ये फर्स्ट एड किट होनी ही चाहिए ऑल द टाइम। जो भी प्रैक्टिस एरिया है वहाँ पर एक किट रखो। या तो अगर आप प्रोफेशनल प्लेयर हो, आपके आसपास कोई सपोर्ट स्टाफ नहीं है, या तो रिमोट एरिया में हो तो भी आप, और या तो घर पे भी हो तो भी ये फर्स्ट एड किट तो होनी चाहिए। तो आप क्या क्या रख सकते हो इसमें, उसके एग्जांपल दिए हुए हैं। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज आइस पैक, सेकंड कोल्ड स्प्रे आप रख सकते हो, द थर्ड वन इज कॉटन रोल रख सकते हो, द नेक्स्ट वन इज गोज पीसेस रख सकते हो, स्टेराइल या डेटॉल या सेवलॉन रख सकते हो, इलास्टिक रैप बैंडेजेस रख सकते हो, बैंडेड रख सकते हो, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड पेन किलर्स, थोड़ी मेडिसिन रखो साथ में, जैसे कॉम्बिफ्लैम है, पैरासीटामोल है, मेटासिन है, एक्सेट्रा। और आप हैंड सैनिटाइजर रख सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं वो आप ऐड कर सकते हो आपकी फर्स्ट एड किट में। थिंग्स टू रिमेंबर, योर हैंड शुड बी स्टेराइल बिफोर गिविंग एनी ट्रीटमेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेराइल प्रॉपरली होना चाहिए, अदरवाइज दूसरों को इफेक्ट हो सकती है, उसको पस हो सकता है या तो बैक्टीरिया की इफेक्ट हो सकती है, मतलब इसमें जम्स जाएंगे आपके हाथ के थ्रू। तो योर हैंड शुड बी स्टेराइल। सेकंड, नेवर यूज एनी हीट मॉडलिटीज फॉर एटलीस्ट फर्स्ट 48 आवर्स। एज आई सेड कि पहले 2 या 3 दिन जब तक स्वेलिंग है तब तक हीट मॉडलिटीज यूज मत करो। इट्स बेटर टू यूज आइस। use only ice and cold modalities to keep swelling minimum and to improve healing. You can use heat modalities after 48 hours. 2-3 दिन के बाद जब आप देखो कि स्वेलिंग कम हो गया है या पूरा चला गया है, तभी आप हीट मोडालिटीज यूज कर सकते हो। So these all things you can do for the first aid and injury management at the acute level. Over to you, sir. Jetwa, sir, over to you. जी, थैंक यू वेरी मच सर। आज के सेशन के अंदर सर ने जो भी टॉपिक डिस्कस किया है उसके रिगार्डिंग अगर कोई आपके क्वेश्चंस हो या आपके कोई क्वेरीज हो तो उसके सेशंस के रिगार्डिंग आप अपना जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन आंसर सेशन में या तो चैट बॉक्स में आप ड्रॉप कर सकते हैं। पार्टिसिपेंट्स में से कोई भी किसी को भी कोई क्वेश्चंस हो या कोई क्वेरीज हो तो वो चैट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस। सर कोई क्वेश्चंस या कोई क्वेरीज है, वो सेशन रिलेटेड मैसेज नहीं आ रहा है, तो आई थिंक द मैसेज हैज बीन क्लियरली कन्वेड टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। Okay. Sir, there is one questions from one of the participants. Yeah.
how many hours to do practice for cricket? It depends upon कौन सा फॉर्मेट यू आर गोइंग टू प्ले. अगर टेस्ट क्रिकेट खेलना, मतलब अगर हमारी मैच फर्स्ट अगर रणजी ट्रॉफी या कोई भी इंडियन टेस्ट क्रिकेट है, तो उसके हिसाब से हम प्री मैच प्रैक्टिस करते हैं. उसके लिए हम लंबा सेशंस रखते हैं विथ लेस इंटेंसिटी, क्योंकि उसमें हमको इतना इंटेंसिटी की जरूरत नहीं है. तो बैट्समैन लंबा लंबा बैटिंग करते हैं लंबे टाइम तक, बॉलर से थोड़ा ट्राई करते हैं 8 से 10 ओवर का एट ए टाइम पे स्पेल डालें. तो उस हिसाब से हम जो प्रैक्टिस है उसको शेड्यूल करते हैं, फाइनलाइज करते हैं. जैसे कि हम 2020 क्रिकेट खेलने जाते हैं, तो उसके पहले हम मैक्सिमम 4 to 5 आवर्स बॉलर हैज टू बॉल, ठीक है, क्योंकि उसको 2020 क्रिकेट में चार ही ओवर डालनी है. तो उसमें हम फील्डिंग के सेशन में बहुत हाई इंटेंसिटी रखते हैं, पर उसका जो सेशन लेंथ है वो हम कम कर देते हैं. तो डिपेंड कि कौन सा फॉर्मेट हमारा जो नेक्स्ट कौन सा फॉर्मेट टीम को खेलना है, उस हिसाब से प्लेयर्स प्रैक्टिस करते हैं. सेकंड ऑफ सीजन में ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, जैसे मॉर्निंग में उन लोगों ने एक दिन जिम किया, एक दिन ग्राउंड ट्रेनिंग की, तो और नेट प्रैक्टिस वो शाम को करते हैं. क्योंकि एक हम रूल बना के, लाइक वी हैव केप्ट अ रूल, द प्लेयर शुड बी प्रॉपर्ली रिकवर्ड. तो अगर 1 घंटा सुबह में वो ग्राउंड ट्रेनिंग करता है, तो उसके तुरंत बाद वो नेट प्रैक्टिस में जस्टिफिकेशन नहीं दे पाएगा बिकॉज ऑफ फटीग एंड लैक ऑफ रिकवरी. तो हम वो बीच में टाइम देते हैं प्लेयर को. तो 2 सेशंस रखते हैं, एक मॉर्निंग का और एक इवनिंग का. इस हिसाब से हम लोग प्रैक्टिस सेशंस अरेंज करते हैं. जी, thank you very much, sir. Sir, there is one more questions from one of the attendees. In a wrestling or boxing competition during break time, how can we treat our players to quick recovery from the tiredness? See, for me, any sports or any player has to be recovered very well the same morning. तो उनका जो रिकवरी है, जो न्यूट्रिशन है और रिकवरी पार्ट है, वो अगले 2-4 दिन से ही स्टार्ट हो जाना चाहिए. उनका जो हाइड्रेशन है वो पहले से ही स्टार्ट हो जाना चाहिए. उनका जो न्यूट्रिशन है वो पहले से ही स्टार्ट होना चाहिए. तो दैट विल गिव द बेस्ट इफेक्ट ऑन रिकवरी एट द सेम टाइम और एट द सेम डे. ठीक है, किसी को क्रैम्प हुआ और मैंने पानी पिलाना चालू किया जो प्लेयर को, तो वो उतना रिकवरी नहीं देगा जितना मैं अगले दिन से ही उसको हाइड्रेटेड करता रहूं. ठीक है, अगर रेसलिंग है तो कौन सा, मतलब आप कौन से मसल्स वहां पर, वो जो प्लेयर है कौन सा मसल्स यूज करता है, कौन से मसल्स पे उसको ज्यादा टायर्डनेस या फटीग लगता है, ठीक है, उसके ऊपर पहले तो फोकस करना चाहिए. सेकंड थिंग, उसके न्यूट्रिशन में ऑलवेज आई प्रीफर कि कार्बो, ये अपना कार्ब्स वाला, मोर कार्ब्स वाला जो डाइट है वो एट अ टाइम जो एटीपीज, एट अ टाइम जो एनर्जीज देता है, तो हाई ऑन कार्ब्स प्लेयर्स को रहना चाहिए एट द टाइम ऑफ इवेंट. तो हम लोग हमेशा एट द टाइम ऑफ इवेंट हाई ऑन राइस और हाई ऑन बनानास और फ्रूट्स पे प्लेयर्स को ज्यादा रखते हैं. सो दिस इज हाउ यू कैन मैनेज. Thank you very much, sir. Now, going further for our program, I would request our assistant professor, Dr. Om Prakash Misra, sir, to render vote of thanks and conclude this session, please. Dr. Om Prakash Misra, sir. Thank you, sir. To give thanks for Abhishek Thakkar, sir, has nicely presented the actually he has focused on the very much how to solve the problem, injury to solve injury. सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से सब एस्पेक्ट को टैकल किया और सर का जो ऑफ प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही अच्छा है, बड़ी रिलैक्स तरीके से पढ़ाते हैं सर आप. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस सर. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू ऑल ऑफ यू. Thank you. अब Thank you, बहुत सर जी, आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग. आप लोग बहुत मेहनत करते हो. आई फ्रीक्वेंटली टॉक विद राणा सर. ही ऑलवेज प्रेज ऑल ऑफ यू कि जो हमारा जो टीम है पूरा, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड, क्योंकि ये मैंने कहीं पर भी नहीं देखा, इतने सारे
अभी ये टाइम पे इतने सारे अच्छी तरीके से जो वेबिनार्स है वो ऑर्गेनाइज होते हैं and it goes to maximum number of players and participants and support staff. So much appreciated to all of you. Thank you. थैंक यू सर, क्योंकि ये तो हम लोगों का प्लेजर है कि इतने डायनामिक वाइस चांसलर मिले हैं सर, और वो हम लोग को रिकॉग्नाइज भी करते हैं. थैंक यू सर. Thank you, sir. Thank you so much.